Ajay ji, thank you for speaking with ANI. Suddenly, one sees a kind of a vicious attack by the Congress on the Aam Aadmi Party. Till about a week ago, it seemed like some kind of a soft campaign you people were running. But both Priyanka Gandhi as well as Rahul Gandhi have done a very personalized attack on Arvind Kejriwal. Why has that happened? Why do you call it a personalized attack? We've been talking about issues. We've been talking about various issues pertaining to public. So it's not a personal attack. When we talk about corruption, obviously you may say it is a personal attack on Kejriwal or on Manish Sisodia because they were involved in corruption. And Supreme Court also, while giving bail to Kejriwal, has not totally exonerated him. Supreme Court specifically said that he can't enter into Players Building, the Delhi Secretariat. He can't call any officers. He can't sign on any of the files. So, which means that Supreme Court also, prima facie, believes that there is something wrong which has happened. So, it's not a personal attack. And imagine a party which was formed to curb corruption, which was formed to bring in Lokpal. And that party, the leaders themselves are caught taking bribe and spending money, corruption money on elections. So this is something which is very strange, and this is what we are talking about. When I said personalized, what I meant was that what you have just quoted to me, this was something that Mr. Rahul Gandhi knew 3 months back, 6 months back. No. 15 days back, but it's only now he's saying Wagonar mein aaye the. There is something new which has happened, and that something new is the CAG report, which has just come out, which they were sitting upon. So that CAG report clearly explains how this corruption took place. It explains about the Sheesh Mahal. It explains about the liquor scam. So this is something which has just happened now. So this is something which has opened eyes for everyone. So I think this is something new, a new development, the CAG report, and it was on CAG reports basis only that AAP used to attack the Congress party when we were in power in 2012-13. So now again, when CAG report clearly indicates wrongdoings of Aam Aadmi Party government as far as making of Sheesh Mahal is concerned, as far as liquor policy is concerned, then we all have every right on the basis of that CAG report to criticize the government. Ajay ji, आपने कहा था, and I quote, Kejriwal came to power against corruption and in the name of eradicating corruption, but never allowed the 14 CAG reports detailing his and his government's corruption to be made public on the floor of the Vidhan Sabha. अब ये बात कांग्रेस को सिर्फ जनवरी 2025 में क्यों why is it come to your? इसलिए क्योंकि ये दिसंबर में ही एलजी ने इसकी इजाजत दी है। नहीं, इसीलिए क्योंकि दिसंबर में ही एलजी ने अलाउ किया है। यही तो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। केजरीवाल ये कहते हैं कि एलजी ने बहुत लेट हमें कहा है, हम ये कह रहे हैं कि लेट कहा या पहले कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए दिसंबर में भी, नवंबर एंड में भी कहा तो स्पेशल सेशन बुला करके उसके अंदर रिपोर्ट पब्लिक कर सकते हैं, और एलजी भी अगर चाहे तो सभी एमएलएस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट अगर पब्लिक डोमेन में अगर आती है, और आप सोचिए कि वो केजरीवाल जो करप्शन को हटाने के लिए, लोकपाल को लाने के लिए सत्ता में आया था, और वही केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ क्योंकि उसमें उसके खिलाफ में आ रहे हैं। अब सीएजी की रिपोर्ट जब हम लोगों ने देखी, हम लोगों को अपने सोर्सेज से मिली, तो हॉस्पिटल्स के अंदर 382 करोड़ का स्कैम हॉस्पिटल्स के अंदर अकेले के अंदर था। सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि किस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स खराब स्थिति में हैं। हमारे 17 हॉस्पिटल्स में एक बेड पे 2 मरीज लेटे हुए हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सरे की मशीन्स हैं लेकिन वो काम नहीं करती हैं। सीटी स्कैन्स की मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं, लेकिन वो 10% 20% सिर्फ काम कर रही हैं। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 70% की वैकेंसीज हैं। हमारे यहाँ पर सभी के वैकेंसीज हैं। हमारे टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसीज हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे, मोहल्ला क्लिनिक्स काम नहीं कर रहे, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब सीएजी की रिपोर्ट है और ये करप्शन हटाने के नाम पे आए हैं, तो उसके ऊपर बैठने का तो इनको कोई अधिकार नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि एलजी कर सकते हैं, एलजी भी नहीं कर रहे, तो क्या मिली भगत है बीजेपी? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भी, लेकिन ये प्राइमा फसाई सबसे महत्वपूर्ण, ये एक्सट्रीम स्टेप होता है कि एलजी एमएलएस को बांट दे, लेकिन वो स्थिति साधारणतः नहीं आनी चाहिए। साधारणतः चुनी हुई सरकार को ही सीएजी की रिपोर्ट्स, और 14 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जो कि दिसंबर के अंदर, नवंबर एंड में एलजी ने क्लियर कर दिया था। इवन बिफोर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के आने से पहले ही क्लियर कर दिया था।
तो उस टाइम पे इनको स्पेशल सेशन बुला करके इनको वो सीएजी की रिपोर्ट्स पब्लिक करते, लोगों के सामने, लोगों को भी निर्णय लेने से पहले, एक उन्होंने इलेक्शन में निर्णय लेना है तो उससे पहले लोगों के सामने साफ तस्वीर तो होनी चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है सरकार के कामों के बारे में। अगर आप उसको भी छिपा रहे हैं तो इसका मतलब आप जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, जनता को नई सच्चाई बताना चाह रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालना चाह रहे हैं। और वो पार्टी जो अपना नाम जिसने आम आदमी की पार्टी रखी हुई है, वो आदमी 173 करोड़ के शीश महल के अंदर रहा है, जिसकी एक एक कालीन करोड़ों रुपए की है, उतने की कालीन है जिसमें गरीब आदमी के 4-4 मकान आ जाएं। वैसे शीश महल के अंदर जो आदमी रह रहा है और सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और उस सीएजी की रिपोर्ट को वो पब्लिक नहीं कह रहा, तो क्या ये भी भ्रष्टाचार नहीं है क्या? शीश महल 2 साल से बन रहा था, आप खुद देख रहे थे, दिल्ली के सारे लोग जो लटियंस दिल्ली में रहते हैं वो भी देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस को तो दिखाई नहीं दी। अच्छा, आपको शायद ये मालूम नहीं है कि उसकी कंप्लेंट मैंने करी है। आपको शायद मालूम नहीं है कि उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कंप्लेनेंट मैं हूं। आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। और मैं उसके बारे में मैंने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और शीश महल के और केजरीवाल के खिलाफ मैंने निरंतर लड़ाई लड़ी है। अगर कोई एक आदमी, चाहे बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, जिसने लगातार केजरीवाल को सही मायने में पहचाना, अब तो सब लोग पहचान रहे हैं। शुरू से 2013 से लेकर 2013 में भी बीजेपी के बहुत लोग इसका समर्थन करते थे, चाहे वो बाबा रामदेव, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, सभी के सभी हों। लेकिन 2012-13 से लेकर के अब तक लगातार निरंतरता से अगर सही मायने में इसको कोई पहचानना, तो मैं खुद उसका क्रेडिट लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार बहुत विरोधों के बावजूद इसका विरोध करता रहा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, आपका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे रुक गया जहां पे आपने खुलासा करना था कि आपने कैसे अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। वो इसलिए रुका क्योंकि सुखजिंदर रंधावा को मैं चाहता था एज डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम, फॉर्मर होम मिनिस्टर, वो मेरे साथ रहे। उसी दिन उनको अचानक अपने किसी व्यक्तिगत कारण से उनको मध्य प्रदेश जाना पड़ा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने स्थगित नहीं किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने पोस्टपोन करके हमने सिर्फ 1 हफ्ते के बाद में कर लिया, जिसमें हमने विस्तार से बताया कि किस वजह से मैंने उसको कहा कि वो देशद्रोही है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना, ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं जो मैंने उस वक्त कहा, अब उसके प्रूफ भी हम लोगों ने, मैंने और सुखजिंदर रंधावा ने, हम दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके प्रूफ भी हमने दिए। पर जब आप इतने साल से कह रहे हैं, आप कह रहे 2013 से कह रहे थे, आपके जैसे और लोग भी थे, पर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? देखिए, हमारी पार्टी में अलग अलग इसके बारे में व्यूज़ थे। मेरा शुरू से ही मानना था, मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी निजी राय है कि 2013 में हमको इसको बाहर से समर्थन हमने किया तो दिल्ली की जनता को उसका नुकसान हुआ, क्योंकि दिल्ली की जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान हो रही थी, वो एकदम से उसके ऊपर ब्रेक लग गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पे कम हो गया, बसेज हमारी कम हो गई दिल्ली के अंदर, हमारे स्कूल्स हमारे कम हो गए, बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ने कम हो गए, हॉस्पिटल्स नए बनते थे वो बनने बंद हो गए, सड़कों में गड्ढे हमारे पड़ गए, मेट्रो की रफ्तार जिस तरीके से थी वो हमारी कम हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब होने की वजह से एयर पोल्यूशन हमारा बढ़ गया। हमारे उस वक्त जो है 2016 के अंदर 18% से 27% टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर एयर पोल्यूशन का जिम्मेवार होता था। अब जो है 18 से 27% से बढ़ करके ये 48% अब जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिम्मेवार है पूरा एयर पोल्यूशन का, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। दिल्ली के अंदर 1800 नई गाड़ियां रोजाना लोग खरीद करके लाने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो दिल्ली में हम लोगों ने उस वक्त जो इनको बाहर से समर्थन किया, मैं ये मानता हूं कि उसकी वजह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। और उसी वेग में मैं कहना चाहूँगा कि हमको इनके साथ में अलायंस नहीं करना चाहिए था, और मैं उस वक्त भी विरोध करता था। ये मेरे अपने विचार थे और मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से हमको ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ समझते हैं। अजय जी, आजकल आप और बाकी पार्टी के जो सदस्य हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, अब सब शीला दीक्षित की बात करते हैं कि उनका कार्यकाल ऐसे था वैसे था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी शीला जी को अटैक कर रहे थे उस दौरान वो अकेली खड़ी थी, पार्टी उनके समर्थन में नहीं था। पूरी पार्टी मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं था। पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ थी। अगर पार्टी उनके साथ नहीं होती तो हम लोगों के शायद 8 सीट्स भी उस वक्त नहीं आती। और पार्टी कैसे थी, पूरी की पूरी टिकट्स हम लोगों की 2000 इंटरव्यूज में नहीं, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ। हो सकता है पीसीसी उस वक्त जयप्रकाश अग्रवाल जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनको उनसे वैसा समर्थन जितनी
उम्मीद थी उनको शायद नहीं मिली होगी, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी के वर्कर्स उनके साथ में थे और उनके साथ में खड़े हुए थे, सारी टिकट्स उनके कहने पे थी, सारे एमएलएज उनके थे। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई भी इस तरीके की बात होगी। द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल हैज बीन टू द डेट्रीमेंट ऑफ, और आम आदमी पार्टी हैज बीन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन दिस सिटी और स्टेट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिल्ली। क्या ये बात आपको 2013 या आपकी पार्टी में 2013 से पता नहीं लगा था? देखिए, उस वक्त तो एक समय पे तो शीला जी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं थी, सपोर्ट करने के। एक वक्त वो भी ऐसा था कि जब वो भी खिलाफ में नहीं थी, सभी लोगों की एक राय थी कि इसको बाहर से समर्थन देना चाहिए। और उस वक्त मैं भी उनका केजरीवाल का उस वक्त भी मैं विरोध कर रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशंस लेती है पार्टी, अलग अलग लोग अपने डिसीजंस लेते हैं, तो विवेक के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार लेते हैं। तो उस वक्त ऐसी सोच रही होगी कि हमको केजरीवाल को एक बाहर से सपोर्ट करके बीजेपी को रोकने का, क्योंकि हम लोग जो है अगर बाहर रहते तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती और हमारे एकदम पार्लियामेंट के इलेक्शंस नज़दीक थे, तो शायद ये सोच उस वक्त ये विवेक रहा होगा, शॉर्ट टर्म सोच रही होगी। लेकिन उस शॉर्ट टर्म के बाद में जिस तरीके से केजरीवाल ने बर्ताव किया, बिहेव किया, मेरे ख्याल से सबकी आंखें खुली रह गई। उस वक्त सभी के सभी ये रियलाइज़ कर रहे थे कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी ऐसे को सपोर्ट करके। आम आदमी पार्टी कहती है, एंड आई डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू, यू कैन टेल मी व्हाट द सीन इज, कि एक अनस्टेटेड अग्रीमेंट है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है विल वर्क टुगेदर इन दिल्ली टू मेक श्योर दैट आम आदमी पार्टी डजंट कम टू पावर हियर, ताकि देयर इज अ क्विड प्रो को एंड पंजाब में द बीजेपी कैन सपोर्ट द कांग्रेस टू मेक श्योर दैट दिस इज एब्सोल्युटली आम आदमी पार्टी डजंट कम टू पावर। I'll tell you, absolutely wrong. Why would BJP do this? Because BJP at the national level is the biggest beneficiary of Kejriwal being in power in Delhi. And let me explain how. In Delhi, everyone knows that the Lieutenant Governor is the most powerful person, most powerful administrator, because he controls land, he controls law and order. The police and land, DDA, both are with the Lieutenant Governor as per the Constitution. So even if Kejriwal is the Chief Minister, the exact actual power remains with the Lieutenant Governor, who is an appointee of the BJP. But what happens in Lok Sabha? If Congress gets weakened in Delhi, in Lok Sabha, BJP wins all the 7 seats. During Sheila Ji's time, it was totally opposite, because in Sheila Ji's time, whenever we were in power in Delhi, we used to win all the 7 elections of Delhi. So if you weaken Congress in Delhi by making it as a third party, BJP tends to benefit in Lok Sabha elections. तो आप जो है वो गलत कह रहे हैं कि हमारी एक टैसिट, अगर हमारी टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती तो बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहती कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी, बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 7 सीटें नहीं जीत सकती। अब जब से केजरीवाल आए हैं 2013 से लेकर के अब तक के 3 इलेक्शंस में, तीनों में वो जीते और तीनों के अंदर बीजेपी 7 की 7 सीट्स जीत रही है। हमारे समय में, शीला जी के समय पे, जब कांग्रेस दिल्ली में जीतती थी तो लोकसभा 7 जीतती थी। तो लोकसभा में बीजेपी को फायदा हो रहा है इनके जीतने से, और दिल्ली में वैसे ही उनकी अपनी सरकार है क्योंकि एलजी उनका है। ये जो ज्ञान है ये आपने राहुल गांधी को दिया है अब टू सडनली रियलाइज कि आम आदमी पार्टी राइज इज बैड फॉर द कांग्रेस? सडनली नहीं, मेरे ख्याल से वो तो इंडिया अलायंस में साथ बैठे थे। नहीं, इंडिया अलायंस में साथ बैठे थे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तो अब आई हैं, और उसके बाद में सिर्फ सीएजी नहीं, उसके बाद भी आप देखिए इंडिया अलायंस जैसे, तो दिसंबर तक नहीं पता, मैं बताता हूँ 2 बहुत बड़ी और चेंजेस हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा सीएजी का, जैसे मैंने बताया। दूसरा, हरियाणा के इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शंस थे, उस वक्त हम लोग केजरीवाल से और इनकी पार्टी से डिस्कस कर रहे थे कि आप 4 सीट लीजिए, वो कह रहे थे हम 6 ले लेंगे। तो डिस्कशन ये था कि 4 लें या 6 लें। इतने में केजरीवाल का जमानत होती है, नेक्स्ट डे बाहर आते हैं और वो अपने आप यूनिलैटरली अनाउंस कर देते हैं कि हम 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। तो ये शुरुआत राहुल जी ने नहीं करी, ये शुरुआत केजरीवाल ने करी हरियाणा इलेक्शन से। तो 90 हरियाणा की सीट इम्पैक्टेड ऑन 70 दिल्ली की नहीं, हाँ, उसी के साथ में जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन जब खत्म हुए तो गोपाल राय ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि अब हमारा अलायंस खत्म,
अब हम 70 की 70 सीटें यहाँ पे लड़ेंगे। आप अपने रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो सबसे पहले गोपाल राय ने इस बात को कहा, फिर सिर्फ गोपाल राय ने नहीं कहा, उसके बाद में जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे, राघव चड्ढा से लेकर के संजय सिंह से लेकर के केजरीवाल तक, सबने कहा कि हम 70 की 70 सीटें खुद लड़ेंगे। जब आप खुद कह रहे हो कि हम 70 की 70 सीटें लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस, ये तो है नहीं कि कांग्रेस एक भी नहीं लड़ेगी। आपने हरियाणा के अंदर जहां पर आपको 2% से भी कम वोट मिले, वहां पर हमने आपको एक लोकसभा की सीट इलेक्शंस में अलायंस के अंदर दी, बावजूद उसके आप 90 की 90 लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप अपने आप यूनिलैटरली अनाउंस कर रहे हैं कि हम 70 की 70 लड़ेंगे, तो फिर हम भी तो 70 लड़ेंगे ना। अलायंस तो उन्होंने तोड़ा है, तो आप राहुल जी के ऊपर ये नहीं कह सकते अलायंस उन्होंने तोड़ा। फिर राहुल जी ने जब सीलमपुर की मीटिंग करी, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई करप्शन की बात नहीं, जैसे ही करके निकले इनकी ट्वीट आ गई कि राहुल जी तो अपनी पार्टी को बचाने निकले, हम देश को बचाने निकले। क्या ये अपनी पार्टी को नहीं बचा रहे? आज सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल हारते ही, आम आदमी पार्टी के हारते ही ये पार्टी खत्म हो जाएगी। और भ्रष्टाचार के अंदर ये खुद जेल में रह करके कैसे पार्टी खत्म हो जाएगी? पंजाब में तो है ना। पंजाब में कहाँ है पार्टी? पंजाब में तो उनके दो दिन के अंदर पंजाब में सबके सब लोग भागेंगे। पंजाब में इतने बुरे हाल हैं, आज 11 पुलिस स्टेशन में पिछले 2 महीने से ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। वहां पर आज जो है भगवंत मान एक जगह के ऊपर तय करते हैं कि हमने 26 जनवरी को झंडा लहराना है, वहां पे एक दिन पहले आकर खालिस्तान अपना झंडा, खालिस्तानी सपोर्टर्स लगा देते हैं। इनको शिफ्ट करके पटियाला भागना पड़ता है। ये पंजाब के हालात इन लोगों ने पिछले 2-3 महीने के अंदर बना दिए। मैं दिल्ली पे वापस आती हूँ, ऐसे क्यों है अजय जी दैट इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को आपने रीच आउट नहीं किया? क्योंकि अगर रीच आउट किया होता, व्हाई इज इट दैट तेजस्वी हो या अखिलेश हो वो कैंपेन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? जो हमने सबको, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि रीच आउट नहीं किया? मैंने आपको नहीं, मैंने बिल्कुल, हमने सबको रीच आउट किया, सबको कहा कि आप हमारे साथ में चले या न्यूट्रल रहें। यही नहीं, हमने इनको भी, केजरीवाल को भी, नहीं उन्होंने नकार दिया आपके रिक्वेस्ट को? हमने बिल्कुल, तभी तो उनके साथ में लगे। अभी हमने सिर्फ उनको रीच आउट नहीं किया, हम लोगों ने केजरीवाल को भी रीच आउट किया। आपको याद होगा अभिषेक सिंघवी और सप्पल हमारे जाकर के हम लोगों ने भी बात करी कि भी आप अलायंस करिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अलायंस के लिए मना कर दिया। हरियाणा में, जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो हरियाणा में स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन था, हम उनसे डिस्कस कर रहे थे। रात को बात होती है कि हम कह रहे थे कि 4 सीट्स हैं, ये हुड्डा जी से बात हुई, उन्होंने कहा ये 4 दे दें। उन्होंने कहा 4 नहीं, हमको 6 चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ये 6 मांग रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं, अपने लोकल लीडर से बताते हैं। इतने में केजरीवाल जी की जमानत हो जाती, बाहर आकर के अपने आप कहते हैं कि हम 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। तो पीठ पीछे छुरा तो इन लोगों ने सबसे पहले और फिर ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी ने भी रीच आउट किया? ऐसा क्यों है कि तेजस्वी हो जाए, अखिलेश हो जाए, या फिर आदित्य ठाकरे हो जाए, या ममता बनर्जी हो जाए, सबके सब जो है दे आर विलिंग टू सपोर्ट? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जहां तक कि हमारी बात है, हम आपको ये कह रहे हैं कि हमने सारे अलायंस पार्टनर्स को अप्रोच किया। हम ये कह रहे हैं कि हमने केजरीवाल जी से भी अप्रोच किया कि आप हमारे साथ में, हमारे लोकसभा के अंदर 3 और 4 पे हम लड़े थे, बावजूद इसके कि हरियाणा के अंदर आपकी 2% वोट्स आई, हमने आपको 1 लोकसभा हमने दिया। तो अभी भी हम लोगों के अलायंस होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इज इट राइट देन व्हाट उमर अब्दुल्ला से, इसकी अगर इंडिया अलायंस है ही नहीं तो फिर डिसबैंड कर लो इसको? देखिए, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब जो है स्टैंड जो ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। नहीं, पर आप उनके साथ अलायंस में लड़ रहे थे, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन 3 महीने पहले तो आप अलायंस में थे, तो हम उनके अभी मंत्रिमंडल के पार्ट तो नहीं है ना। तो हम मंत्रिमंडल के पार्ट तो नहीं है ना, तो मंत्रिमंडल के पार्ट तो नहीं है ना मैडम। तो आप जो है, जो फर्क है पहले और अब में, वो भी तो आप देखिए जी। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगी कि आप खरगे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, व्हाई डिडंट दे जॉइन द न्याय यात्रा जो संदीप दीक्षित निकाल रहे थे? they were not part, the Congress of the Delhi unit. नहीं, संदीप दीक्षित ने न्याय यात्रा नहीं निकाली। जो दिल्ली यूनिट आपकी जो दिल्ली यूनिट ने जो निकाला, उसके अंदर मैं भी था। एज ट्रेजरर आई एम नंबर 2 इन द पार्टी। सुखविंदर सुक्खू आए वहाँ पे, हमारे दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हमारे वहाँ पर आए, ये सबके सब लोग आए हमारे वहाँ पे। So why weren't the leadership involved? इसलिए कि हम लोगों को लग रहा था कि उस वक्त कि अलायंस हो सकता है हमारा। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग आखिर टाइम तक के अलायंस की हम लोग कोशिश करते रहे, और अलायंस अगर हो जाता तो उस वक्त अलायंस के लिए नेशनल लेवल के ऊपर कोशिश हो रही होगी, तो इस वजह से शायद नहीं आए होंगे। अजय जी, आप ट्रेजरर है, योर पार्टी इज इन पावर ओनली इन 3 states, हाउ आर यू फाइटिंग द इलेक्शंस, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम?
नहीं नहीं, व्हाट डू यू मीन कि जहां पार्टी पावर में ज्यादा होती है तो वहां से ज्यादा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग पार्टी को पैसे देते हैं, हमारे वर्कर्स हमारे को पैसे देते हैं और हम कम खर्चे में लड़ते हैं। बीजेपी ने हमारे से 6-7 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया लोकसभा इलेक्शंस में, लेकिन हमारे से 6-7 गुना ज्यादा सीट्स थोड़े उनको मिली। हमारे 100 सीट्स हम लोगों की आई तो उनकी 240 समथिंग आई, लेकिन उन्होंने हमसे 6-7 गुना ज्यादा पैसा खर्च कैसे, किया। किस, हाउ आर दे स्पेंडिंग मोर एंड यू स्पेंडिंग लेस? भाई वो लोग रूलिंग पार्टी जो है उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को, बड़ी होती है नहीं कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन को, वो आप सब लोगों को मीडिया को ज्यादा पैसे देते हैं तो इसलिए उनके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। सीधी बात है। मीडिया तो वही रो रही है ना कि पैसे तो आ नहीं रहे बीजेपी से, कोई नहीं, they've gone black। नहीं तो पैसे तो आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है ना, आम आदमी तो जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रही है पंजाब गवर्नमेंट से, आम आदमी खर्च कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पैसे लगा करके वो पैसे खर्च कर रहे हैं और अपनी पार्टी थोड़े खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट के पैसे खर्च कर रही है। Is it true that the India Alliance doesn't want the Congress party to become a larger figure in the India Alliance, and Delhi winning will make it one more state? I don't think so. That is in anyone's mind. I don't think so. Because our partners in India Alliance, they are not so self-centric that they would work something detrimental against. So all politicians are self-centered. No, Which but political not party? Politician, but it is a political party. But Political they party. may be. But for everyone, the common enemy for which the India Alliance was formed was the NDA. So we all formed India Alliance to form an alliance against the NDA. So I don't think it would be in anyone's mind to weaken the India Alliance to strengthen the NDA. Because see, in Delhi you're fighting against the Aam Aadmi party, even though it's part of the alliance. Ab the next election is going to be Bihar. Well, why so are you surprised? The thought is going to be कि आप तेजस्वी के साथ कहाँ होंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ. The biggest difference is that Delhi is a sequel to Punjab. In Punjab, we have already fought a very strong battle against the Aam Aadmi Party, even in Lok Sabha elections. So, with Aam Aadmi Party, you shouldn't compare it with the other alliance partners, because Aam Aadmi Party has existence only in Delhi and in Punjab. In Punjab, we've already fought a very strong battle against RJD has no presence anywhere other than Bihar. So that is why I don't think there'll be any problem with RJD, and there'll be no fallout impact of our not having alliance with AAP. So it will have no fallout on Akhilesh campaigning for Aam Aadmi Party? I don't think so. In Uttar Pradesh? It's his decision, because Aam Aadmi Party, as I said, doesn't have any impact outside Delhi or Punjab. In Punjab, we already fought against AAP earlier. So no one should be surprised when we are fighting against AAP in Delhi also, because in Punjab also we fought against Ajay ji, it looks quite impossible that you're going to be forming a government in Delhi. परसेंटेज वाइज आपकी शायद इंक्रीज हो जाए, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इट डजंट लुक लाइक अ चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू कम फ्रॉम the Congress party. So what is the aim of the Congress in this election? Listen, when Kejriwal first contested in 2013, no one gave Kejriwal a chance to form a government, but still he managed 28 seats and he was able to become the chief minister of Delhi. So who knows what will happen if suppose Sandeep Dixit defeats Kejriwal, which is a possibility. Everyone says that this may happen. So who knows what will happen tomorrow in Delhi. Is that the most interesting constituency as far as the Congress is concerned? It is not the only one. You would see surprising results in a large number. More than 24 constituencies will give up. तो realistically आप कितने votes, कितने seats? देखिए, हम लोग जो हैं, अच्छे से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे बगैर और हम लोग जो हैं खुद अपने आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे. So आपने हमारे बगैर का, is there a possibility कि अगर आम आदमी पार्टी को अगर requisite, सुन लीजिए, अगर requisite number of seats ना मिले, that you could again rethink to form a government with them? हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं, तो हम लोगों का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा. नंबर 3 पे बीजेपी है, नंबर कोई भी होगा, हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं और हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा. आप देखिएगा, इसीलिए मैंने हमारे बगैर बोला है कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही बनेगा. अगर आम आदमी पार्टी 30 से लेस आती है तो and Congress gets a few. Congress will get more seats than Aam Aadmi Party. Congress will get more seats than Aam Aadmi Party. That's a very ambitious आप target. देखिएगा, just there are a number of people who are saying that the Purvanchal voters are going to be the decision makers which way it will go. What is your view about this? Well, Purvanchal voters, they don't take a decision as Purvanchal voters as a whole. Okay. Purvanchal voters take a decision based on class, based on what
which class they represent. Like we've got Purvachalis who are government servants also, civil servants. We've got Purvachalis who are who work in corporate sector. We have Purvachalis who live in slums, who live in unauthorized colonies, who are street vendors. So there are different kinds of Purvachali votes, and they are not only Purvachalis. We've got people from Haryana also who live along with them in the same segment. So in Delhi, the vote doesn't take place on basis of caste. It doesn't take place based on from where you come. It takes place on the basis of which segment of the society you represent. What is your occupation? All government employees will vote in one direction. All street vendors will vote. All small shopkeepers, they will vote in one direction. Come what may, from wherever they would have come. The reason I'm saying this is because the BJP says is that don't forget कि जब COVID हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था अबाउट द पूर्वांचलीज कि ये लोग जो है, एंड नॉट जस्ट बीजेपी, द जेडीयू इज ऑल्सो सेइंग दिस, दैट जब पूर्वांचली वोटर जो है, पूर्वांचलीज जो थे कोविड के दौरान, उन्होंने बसों में भर के वापस भेजा था एंड कहा था कि वो लोग आते हैं एंड सस्ते में यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं. सो द पूर्वांचलीज हैव दिस एंग्स्ट. देखिए, इसमें सिर्फ पूर्वांचलीज नहीं थे. जैसे मैंने कहा कि जो उस टाइम पे स्ट्रीट वेंडर्स या मजदूर थे, तो वो राजस्थान से भी आते हैं, वो हरियाणा से भी आते हैं, वो बाकी जगहों से भी, उड़ीसा से भी आते हैं, पूर्वांचल से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं. तो जाहिर बात है, वो ठीक बात है कि उस वक़्त लोगों के दिमाग में जिस तरीके से दिल्ली में किया, इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ में भी सोच है कि मरकज़ में मुस्लिम्स को जिस तरीके से सेग्रीगेट करके उस वक़्त जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिया था कि ये मुस्लिम्स आते हैं मरकज़ में और यहाँ से निकल के पूरे देश भर में फैलते हैं और उस वजह से कोविड होता है, तो मुस्लिम्स में भी ये एंग्स्ट है. तो सिर्फ ये कोविड को जिस तरीके से इन्होंने किया, और सीएजी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि 56% पैसा जो सेंटर से इनको मिला था ये खर्च ही नहीं कर पाए. तो आप हैरान होंगे कि दिल्ली के अंदर कोविड में एक तरफ लाशें बिछी हुई थी और दूसरी तरफ जो पैसा सेंटर से मिल रहा था, या जो हेल्थ सेक्टर में पैसा था, 250 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर में इनके 4 साल कोविड से पहले और आगे ये खर्च ही नहीं कर पाए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 650 करोड़ के करीब दिए थे, 56% पैसा इनसे खर्च ही नहीं हो पाया. तो ये इस तरीके की सरकार थी. इनके मोहल्ला क्लिनिक सारे के सारे उस वक्त कोविड के दौरान बंद थे. ऑक्सीजन के प्लांट्स ये लोग नया नहीं लगा पाए. आईसीयूज इनके काम नहीं कर रहे, अभी भी नहीं काम कर रहे, जो सीएजी की रिपोर्ट. सर, आपने मुसलमान वोटर के बारे में कहा, आपने अखबार में देखा होगा, कई सारे अखबार में एनालिस्ट कह रहे हैं दैट कांग्रेस इन दिस सिटी हैज बीन जस्ट रिड्यूस्ड to the Muslim votes to come. Muslim voter for the past 3 elections has moved from the Congress, which was traditionally the Congress voter base, has moved away from the Congress to the Aam Aadmi Party. क्या आपका concentration has been limited to just getting the मुसलमान voter back to your fold? आप इसको जो है पूरे efforts को आप बड़ा लिमिट कर रहे हैं. अब आप देखिए, संदीप दीक्षित अगर नई दिल्ली से अच्छा करेंगे, यहाँ पे तो मुस्लिम वोट्स नहीं है ज़्यादा. अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे तो मुस्लिम वोट्स नहीं है. बादली से देवेंद्र यादव अच्छा कर रहे हैं. हाँ, तो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोट्स का इम्पैक्ट है. लेकिन कांग्रेस के हम लोगों की अपनी असेसमेंट है कि हम 25 to 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग जो हैं अच्छे खासे वोट्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर अच्छे खासे मीन्स हम जीत भी रहे हैं और हमारे मिनिमम हमारे 30% वोट्स हमारे 25 to 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं. तो अगर ऐसा है जो हम हमारे अपने सर्वेज में, तो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम वोट्स एंड बिकॉज ऑफ दलित वोट्स. हम लोगों ने देखा है कि लोग गवर्नेंस के तर्ज पे वापस याद कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की गवर्नेंस थी, गुड गवर्नेंस थी, जो अच्छा काम किया, जिस तरीके के लीडर्स हम लोगों के हैं जो गवर्नेंस की बात करते हैं, तो लोग उसको वापस याद कर रहे हैं और कांग्रेस को वापस लेकर के आना चाह रहे हैं. सर, थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट द ईवीएम्स. About half an hour or 1 hour before that, Rahul Gandhi ne in the Lok Sabha in his speech talked about the election commission not giving the real data on Maharashtra election. In दोनों पे पूछूंगी. These are two different things. But what I'm saying is, it's about the election machinery in this country. Will the Congress party accept the results of the elections, of the voting that happens in Delhi as free and fair and even as a level playing field? देखिए, ये दोनों 3 अलग अलग चीज़ें हैं. एक तो ईवीएम अलग है,
और वोटर्स लिस्ट की प्रिपरेशंस और वोटर्स लिस्ट को बनाना ये अलग है, और तीसरा क्या हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये थर्ड डायमेंशन तीनों है। पे बताइए। तीन अलग अलग चीज़ें। देखिए, ना एक्सेप्ट नहीं करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के से फ्लो करके आएगा उसको नहीं मानने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा, ईवीएम में और इलेक्ट्रॉल रोल्स को मैनिपुलेशन में, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो राहुल जी जो बोल रहे हैं कंसिस्टेंटली अभी, वो ईवीएम्स के बारे में नहीं है, नहीं, वो लिस्ट के बारे में है कि कुछ जगहों के ऊपर एकदम से क्यों बढ़ जाता है। तो जो उसमें हम लोगों का ये मानना है कि जो इलेक्शन कमीशन को जो विजिलेंट होना चाहिए कि वोटर्स जो है एक एक घर में 700 600 एकदम से बढ़ गए, कुछ जगहों के ऊपर एकदम ओवरनाइट बढ़ गए, कुछ जगह पे ओवरनाइट कट गए, और जो कट रहे हैं वो रिलीजन स्पेसिफिक वोट्स हैं वो कट रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो कुछ और कहीं पे बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे इलेक्शन कमीशन शुड बी मोर विजिलेंट। एक कमेटी भी बनाई है, ईगल कमेटी एम्पावर्ड ग्रुप का, तो उसमें मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो हम लोग इसको महाराष्ट्र को भी हम देखेंगे और दूसरी स्टेट्स को भी देखेंगे, लेकिन ईवीएम अलग है, ये अलग है। और तीसरा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये संविधान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उस संविधान के तहत कुछ भी होगा तो हम लोग तो उसको मानेंगे। सर, आप राज्यसभा के सदस्य हैं। आज दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में खड़गे जी एंड लोकसभा में राहुल गांधी टॉक्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन राज्यसभा में खड़गे जी ने बजट के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कल जो माता जी ने बजट रखा, फिर सोनिया जी ने टैप्ड ऑन द शोल्डर एंड सेड नो से निर्मला जी, एंड देन ही सेड निर्मला जी ने जो बजट रखा, डू यू थिंक दैट वाज रॉन्ग? देखिए, इसमें कोई मर्यादा के खिलाफ नहीं, था। ऐसा है कि माता जी कहना किसी को भी मदर फिगर के तरीके से कहना, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। So you think it's colloquial हिंदी? नहीं, वो देखिए, वो ट्रांसलेट करते हैं, मतलब उनकी अपनी भाषा आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अपनी भाषा कन्नड़ है, उसको जो है वापस ट्रांसलेट करके उसको बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन में अगर किसी आदमी ने, उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, अगर कुछ बात बोली है, लेकिन रिस्पेक्टफुली उन्होंने बोली। उसके बाद मैं भी वहीं था, उसके बाद में उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे कह करके उन्होंने बात को अपनी कही। तो ये सब चीज़ें देखिए, उनकी बात का सब्सटेंस देखना चाहिए। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, उन्होंने रुपए की डिवैल्यूएशन की बात करी, उन्होंने गरीब लोगों की बात करी, उन्होंने दलितों की बात करी। तो जो सब्सटेंस की बात है उसको करनी चाहिए। बीजेपी की ये कोशिश होती है कि सब्सटेंस की बात को जो है वो दूसरी तरफ किसी एक छोटी सी चीज़ को पकड़ करके वहाँ पे डाइवर्ट करके फिर उसी की बात करते हैं, ये गलत है। उन्होंने जातिवाद के बारे में भी कहा, मनुस्मृति के बारे में कहा। सो ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग अ लॉट, और उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है, दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कोई जेल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी जो है, इट इज़ हिस्टोरिकली बीन अ पार्टी विच हैज़ फॉट फॉर द नेशन, फॉट फॉर द कंट्री एंड गॉट इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। Is that a message that you take to the voters of Delhi? Finally, I'm on asking. देखिए, ये भी एक है, बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस की डेवलपमेंट हम लोगों ने जो करी है वो हम लोग लगातार बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, जिससे जो हम सबको जिस पे गौरव है, उस बात को तो हम लोग जनता के पास में जो भी इलेक्शन होगा बार बार अपने वर्कर्स के माध्यम से लेकर के जाएंगे। और हमें बड़ा गर्व है कि हम उस पार्टी का एक हिस्सा है जिस पार्टी ने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके नेता जेल गए, कुर्बानी दी। आज़ादी के बाद भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने किस तरीके से अपने शरीर पे गोलियां खाई, राजीव जी कैसे शहीद हुए। हम लोगों को इस बात का गर्व है, और ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए खड़े हों और देश के लिए आवाज़ उठाएं। इसीलिए तो हमें दुख होता है जब केजरीवाल, हमें नज़र आता है कि पंजाब के अंदर प्रो खालिस्तान फोर्सेस को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हम लोगों को दुख होता है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके कहते हैं कि ये एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम अब नहीं कह रहे, ये KPS गिल ने 2017 में कहा था कि केजरीवाल इज प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर रेडिकल एलिमेंट्स इन पंजाब which turned out to be prophetic। अब वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि हो रहा है पंजाब में। 3 साल से तो सरकार में है पंजाब में। It didn't strike you then? नहीं, अब शुरू हुआ ना,
अब शुरू हुआ। हम तो पंजाब में हमारे सारे, हम तो ऑपोजिशन में हैं पंजाब में तो हम लगातार बोल रहे हैं। जब पन्नू ने भी कहा कि हमने $16 मिलियन हमने केजरीवाल को दिया चंदे के लिए रूप में, $16 मिलियन मतलब 128 करोड़ रुपया हम लोगों ने जब दिया, जब पन्नू ने कहा तो हमारे लोगों ने पंजाब असेंबली में शोर मचाया और उनको बोलने नहीं दिया और इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया उसमें। तो हम लोग लगातार पंजाब में भी इस चीज़ को बोलते आ रहे हैं। पंजाब में हमारे ऑपोजिशन में हमारे प्रताप बाजवा, रंधावा, राजा वड़िंग, सबके सब लोग लगातार इनके खिलाफ में बोलते आ रहे हैं। Anyway, on that note, thank you so much for giving us the time and speaking, and all the best for the election. Thank you. Thank you.